கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். पिता परमेश्वर को स्तुति है। தேவாதி தேவனுக்கு துதி கன மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर देवन को सदा स्तुति और महिमा हो जाए। இயேசு ஆசீர்வதிக்கும் நேரம். परमेश्वर यीशु मसीह आशीष का समय है। இந்த நேரத்தில் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி பேசுவார். आज परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए आपसे बातचीत करेगा। மெய்யான தேவன் இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह सच्चाई परमेश्वर है। ஆசீர்வதிக்கிறார். ஊழியங்கள் திருச்சபையிலிருந்து உங்களுக்கு செய்தியை கொண்டு வருகிறோம். आशीर्वाद गलीशिया से इस प्रचार को हम ला रहे हैं। நீங்கள் அனைவரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். आप लोग सब आशीष से भरे हुए लोग हैं। இன்றைக்கு நம்முடைய சரீர சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்க இருக்கிறோம். आज हमारा शारीरिक के संबंध एक प्रचार को सुनने वाले हैं। நீதிமொழிகள் 15ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்தை நாம் கவனிக்கும் போது नीति वचन 15:4 ऐसा कहती है, ஆரோக்கியமுள்ள நாவும் ஜீவ விருட்சம். जो शुद्ध जीव है, जीव वृक्ष करके लिखा हुआ है। நம்முடைய நாவும் ஆரோக்கியமானவைகளை பேச வேண்டும். हमारा जो जीव है वो शुद्ध बातों करना है। நம்முடைய நாவு நன்மை தரக்கூடிய வார்த்தைகளை பேச வேண்டும். हमारा जो जीव है वो भलाई देने वाला बातों करना है। நம்முடைய நாவு ஆசீர்வாதம் தரக்கூடிய வார்த்தைகளை பேச வேண்டும். हमारा जो जीव है दूसरों को आशीष लाने का जो बातें करने वाला है। நம்முடைய நாவு ஆசீர்வாதம் தரக்கூடிய நல்வார்த்தைகளை பேச வேண்டும். जो हमारा जो जीव है दूसरों को आशीष लेने का बातों करना है। தேவன் அப்படி நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறார். ऐसे ही परमेश्वर हमसे चाहता है। நீதிமொழிகள் 15:2 நாம் கவனிக்கும் போது नीति वचन 15 का दूसरा वचन ऐसा कहते हैं, ஞானம் உள்ளவர்களின் நாவு அறிவை பேசும். ज्ञानवान का जो जीव है वो शुद्ध बातों करता है। ஞானமாய் இருக்கிறவர்கள், ஞானம் உள்ளவர்கள், ஞானத்தினால் பேசக்கூடியவர்கள் அறிவுள்ள வார்த்தைகளை பேசுவார்கள். जो ज्ञानवान है उसमें लवलीन रहते हैं, उनका मुंह से भलाई अच्छा बातों प्रकट होती है। இன்னொரு வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. दूसरा एक और वचन ऐसे लिखा है, நீதிமொழிகள் 12:18 நாம் கவனிக்கும் போது नीति वचन 12वां अध्याय 18 वचन ऐसे लिखा है, ஞானம் உள்ளவன் நாவு சுகத்தை தரும். जो ज्ञानवान का जो जीव है उनके बातों है दूसरों को तंदुरुस्ती देता है। ஞானமுள்ள நாவு औषधम, वो तंदुरुस्ती देने वाला जीव है ज्ञानवान का जीव। நாம் பேசும்போதே சிலருக்கு சுகம் உண்டாகிவிடும். जब हम दूसरों से बातें करते हैं उसी समय उनका जो रोग से वो चंगा पाते हैं। சிலர் ரொம்ப துக்கமா இருப்பாங்க. कई लोग हम जो मिल रहे हैं वो दुख में पड़े रहते हैं, வருத்தம் நிறைந்து காணப்படுவாங்க. वो बहुत बोझ से भरा हुआ रहते हैं, கவலையில் நிறைந்து அவங்க முகம் வாடி போயிருக்கும். उनका शक्ल देखने में वो उनका शक्ल में इतना शक्ति नहीं पाते दूसरों लोगों में। அப்படிப்பட்டவர்களை பார்த்து நாம் பேச வேண்டும். ऐसे लोगों को हम चुनकर उनसे बातों करना है। அவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை பேச வேண்டும். उनको संतोष जो समाधान लाने वाले का बातों हम देना है। அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய நல்வார்த்தைகளை பேச வேண்டும். ऐसे लोगों को हृदय में खुश होने का बातों हम करना है। அதுதான் ஞானமுள்ள நாவு. यही है ज्ञानवान का जो बुद्धि का बातों है, சுகம் தரும் வார்த்தை, चंगाई देने वाला बातों है। வேதம் சொல்கிறதை கவனியுங்கள். ऐसे ही बाइबल में लिखा हुआ है, நீதிமொழிகள் 10:20 நீங்கள் பார்க்கும்போது नीति वचन 10वां अध्याय 20वां वचन ऐसे लिखा है, நீதிமானாய் இருக்கிறவர்களுடைய நாவு சுத்த வெள்ளி.
जो जो नीतिमान होते हैं उनका जीभ है सिल्वर का समान लिखा हुआ है। ஆமா, அது விலை உயர்ந்த வார்த்தை. देख लीजिए ये जो बातों किसके वो बराबर कर रहे हैं, सिल्वर को बराबर कर रहे हैं, इसलिए वो बहुमूल्य शब्दों हैं। மிக முக்கியமான வார்த்தை. वो बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों हैं जो हम दूसरों को देने वाले। அது விலை மதிக்க முடியாத விலையேறப்பட்ட வார்த்தை. वो तो बहुमूल्य का बात है, ऐसे लिखा हुआ है। அதை கேட்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க. जो लोग हमारा मुंह से बातों को सुनते हैं वो लोग आशीष पाते हैं। பிரியமானவர்களே, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, நம்முடைய நாவு அப்படி மாற்றப்பட வேண்டும். ऐसे ही हमारा जीव भी बदल रहना है। நாவின் பிரதியுத்தரம் கர்த்தரால் வர வேண்டும். देख लीजिए जो कुछ बातों हम करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से आना है। ஆண்டவருக்குள் நாம் வார்த்தைகளை பேசும்போது परमेश्वर का अंदर कर वो सुनकर हम बातों करने के समय வேத வார்த்தைகளை நாம் படித்து அதன் வழியாக ஆலோசனைகளை, நல்ல ஆலோசனைகளை, நல்போதனைகளை பேசும்போது परमेश्वर का वचन को पढ़कर उसके द्वारा हम दूसरों को सलाह देने के वजह से கர்த்தருடைய வல்லமை வெளிப்படும். परमेश्वर का शक्ति प्रकट होता है। கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் அவர்களுக்கு उस உண்டாகும். बातों से परमेश्वर का आशीष मिलता है। வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल कहती है அவன் சொன்னபடியாகும். जैसे वो कहा वैसे ही होगा। நம்ம என்ன சொல்லுகிறோமோ அது வாய்க்கும். हम जो कहते हैं उसको परमेश्वर पूरा करता है। தேவன் அதற்குரிய அதிகாரத்தை நம்முடைய நாவிலே தருகிறார். परमेश्वर ने जो बातों का अधिकार हमारा जीव में उन्होंने रखा है। சங்கீதம் 139 பார்க்கும்போது तो दाऊद का गीतों में हम देख रहे हैं 4வது வசனத்தை பாருங்கள். 122 में 14 वचन हम देख रहे हैं। ஆண்டவர் அங்க என்ன சொல்லுகிறார்? परमेश्वर वहां क्या कहता है? நாவின் சொல் பிரபாதத்துக்கு முன்னமே அதிகாரம் வெளிப்படும். देख लीजिए आप बातों मुंह से बात करने के पहले से ही वो शक्ति प्रकट होगा करके ये वचन लिखा हुआ है। அருமையானவர்களே, मेरा प्रिय भाई और बहनों, கவனியுங்கள். ध्यान से गौर से सुनिए। ஆண்டவர் உங்கள் வார்த்தைக்கு மேன்மை உண்டாக்க मेरा விரும்புகிறார். परमेश्वर आपका जो बातों में वो शक्ति देने के लिए सोच रहा है। தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் வார்த்தையாய் வெளிப்படும். परमेश्वर का जो शब्दों है हमारा मुंह से प्रकट होना है। தேவனுடைய குணாதிசயம் உங்களிடத்தில் இருந்து வெளிப்படும். जो परमेश्वर का गुण कहते हैं वो हमारा शरीर से प्रकट होना है। நீங்கள் தேவ சாயலாய் மாறுவீர்கள். जब आप परमेश्वर का जो रूप में हम बदल जाते हैं, நாம் தேவ சாயலாய் மாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். हम परमेश्वर का रूप से लगातार बनी रह रहे हैं। வேதத்தை படிக்க படிக்க ஆண்டவர் நம்முடைய சாயலை தேவ சாயலாய் மாற்றுகிறார். जितने जितने समय लेकर हम इस वचन को पढ़ते हैं वैसे ही हमारा रूप परमेश्वर का रूप का बराबर वो बदल जा रहा है। நாம் ஜெபிக்க ஜெபிக்க தேவன் நம்மை அவருடைய பிரசன்னத்தால் நிரப்புகிறார். जब आप प्रार्थना में लवलीन रहते हैं परमेश्वर का जो उपस्थिति से बढ़ता है हमें। சங்கீதம் 71 பாருங்கள். भजन संगीता 60 का 24 वचन लिखा हुआ है। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? बाइबल क्या कहती है? நாவு நீதியை கொண்டாடும். जो हमारा बीच जो नीति को वो प्रकट करता है। நம்முடைய நல்ல நாவு நீதியை கொண்டாட வேண்டும். हमारा जो अच्छा भलाई भरे हुए जीव है वो नीति को प्रकट करना है। நீதி வெளிப்படுவதற்காக உங்கள் வாய்கள் என்னுடைய வாய்கள் பேச வேண்டும். इसलिए जो नीति प्रकट होने के लिए हमारा सोच और बातों होकर रहना है। வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल कहती है நம்முடைய நாவு ஆனந்த சத்தத்தால் நிறைந்திருக்க வேண்டும். हमारा जो जीव और जीव से प्रकट होना शब्द है वो खुशी से
आनंद से भरा हुआ रहना है। ஆனந்த சத்தம் என்றால் என்ன? आनंद का शब्द मतलब उसका अर्थ क्या है? தேவனை பாடும் பாடல்கள், हमें परमेश्वर को ऊंचा करने का जो गीत होते हैं, தேவனை துதிக்கும் பாடல்கள், हमें परमेश्वर को स्तुति करने का जो उन्नत गीतों होते हैं, தேவனை மகிமைப்படுத்தும் பாடல்கள், ये परमेश्वर को महिमा लाती है वैसे गीतों है। நம்முடைய நாவு ஆனந்த சத்தத்தால் நிறைந்திருக்க வேண்டும்। ऐसे ही हमारा जीव आनंद का शब्दों से बढ़कर रहना है। அப்படி தேவன் எதிர்பார்க்கிறார்। यही है मेरा परमेश्वर वो चाहता है। நாம் வாயின் வார்த்தைகளால் அவரை புகழ வேண்டும்। हमारा मुंह का जो जीव का वो शब्दों से परमेश्वर को महिमा देना है। சங்கீதம் எழுதிய சங்கீதக்காரன் பேசுகிறதை பாருங்கள்। भजन संगीता को लिखा हुआ वो दाऊद के बारे में हम आज थोड़ा सोचते हैं। 66:17 संगीதத்தை பார்க்கும்போது 66 का 16 भजन ऐसे कहता है, என் நாவினால் அவர் புகழப்பட்டார்। मेरा जीभ से परमेश्वर को स्तुति हो गया है और महिमा हो गया है करके लिखा है। தேவன் நம்முடைய நாவினால் புகழப்பட வேண்டும்। हमारा जीभ के द्वारा जो सृष्टि करता है वो महिमा पाना है। மனிதனை புகழ்ந்து கொண்டு திரிவதல்ல, मनुष्यों को प्रशंसा करके घूमते रहना वो उचित नहीं है। மனிதனுடைய காரியத்திற்காக அவனை வாழ்த்தி கொண்டு திரிவதல்ல, मनुष्य को महिमा देकर उन्हें उन्नति में उन्हें उनका पास रहने का कोई मौका अच्छा नहीं है। பணத்துக்காக புகழ்ந்து திரிவதல்ல, पैसा लाने के लिए उसके पीछे लगी रहना उचित बात नहीं है। நம்முடைய நாவினால் தேவன் புகழப்பட வேண்டும்। सदैव हमारा मुंह और जीभ से परमेश्वर को महिमा और स्तुति होते रहना है। உன் நாவிலே பாவம் வரும் என்றால் देख लीजिए हमारा जो जीभ में हमारा जो उसमें पाप बनी रहता तो அந்த பாவம் வராதபடிக்கு உன் நாவை அடக்க பழக வேண்டும்। ऐसे बिना पाप से हमारा जीव को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। அதை தேவன் விரும்புகிறார்। यही परमेश्वर हमारा जीवन से चाहता है। வார்த்தையினால் உன் நாவினால் பாவம் வெளியே வரக்கூடாது। हमारा जो बातों से पाप और शापों न प्रकट होना चाहिए। நீதிமான்களுடைய நாவு என்ன செய்யும்? देख लीजिए नीतिमान का जो जीभ है वो क्या कहते हैं? வேதம் சொல்வதை பாருங்கள்। बाइबल जो कहती है वो ध्यान से सुनिए। நீதிமானின் நாவு நியாயத்தை பேசும்। जो नीतिमान का जो जीभ है वो नीति को ही बात करता है, நீதியை பேசும்। वो नीति है बात करता है। நம்முடைய நாவுகள் நீதியை பேச வேண்டும்। देख लीजिए हमारा जीव परमेश्वर का जो नीति को प्रकट करना है। அந்த நீதியின் வார்த்தைகளால் நம்முடைய நாவு நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும்। नीति वचन से हमारा जीव बढ़ते रहना है। நாவு நீதியை கம்பீரித்து பாட வேண்டும்। ये जीव के द्वारा वो परमेश्वर को महिमा देना वो नीति से भरा होकर हम रहना है। வேதம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது। बाइबल यही लिख रहा है। நாவும் நீதியை கம்பீரித்து பாடுகிறது। आमीन। दाऊद लिख रहा है मैं तुम्हारा नीति को महिमा से गीत गाऊंगा करके लिखा है। அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय भाई और बहन, தேவனுடைய நீதியை பாடி நாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்। सदैव हम परमेश्वर का नीति को लेकर गीत गाकर वो उनको महिमा देने का शिक्षा हम पाना है। அப்படி செய்தால் என்ன நடக்கும்? ऐसे करने से हमारा जीवन में क्या होता है? அப்படி செய்தால் உன் வாழ்க்கையில என்ன மாற்றம் வரும்? ऐसे करने से आपका जीवन में क्या बदलाव आता है? கவனியுங்கள்। ध्यान से सुनिए। உன் நாவின் வாக்கு உனக்கு பலிக்கும்। जैसे आपका जीव का जो वाक्य है वो पूरा होता है। பிரியமானவர்களே, मेरे प्रिय भाई और बहन, ஆண்டவர் உன் நாவை பயன்படுத்தி ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார்। दूसरा चीज है तुम्हारा जीव से आपका जीव से जो आशीष शब्दों के द्वारा लोगों को आशीष करने के लिए मेरे परमेश्वर चाहता है। சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், भजन संगीता जो दाऊद कहता है நீதியையும் துதியையும் பாடுகிற நாவு என்னுடைய நாவு என்கிறான்। नीति और स्तुति को
गाने वाला जीप है मेरा जीप करके वो लिख रखा है। எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय भाई और बहनों, நம்முடைய நாவிலே நீதி பாடப்பட வேண்டும். सदाओं इस जीप से परमेश्वर का नीति को उठाकर गीत गाना है। உங்கள் நாவு தேவனுடைய துதியை பாட வேண்டும். सदाओं हमारा जीप परमेश्वर का स्तुति को गाना है। தேவன் அதைத்தான் விரும்புகிறார். यही मेरा परमेश्वर हमसे चाहता है। அப்படி செய்யும் போது ऐसे करने से சரீரத்திலே நோய்கள் வராமல் தேவன் தம்முடைய பிரசன்னத்தினால் நிரப்புகிறார். परमेश्वर उनका प्रशंसा से हमारा शरीर को कोई दुख ना आए और सुरक्षित करता है। உன் சரீரத்தில் இருக்கிற நோய்களை முற்றிலும் நீக்கி போடுவார். जो हमारा शरीर का पीड़ी है वो सब निकल डालता है। அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय और भाई और बहनों, ஆவியானவர் நம்முடைய சரீரத்தில் வரும்போது ये पवित्र आत्मा हमारा शरीर से बसेगा तो வேதத்தின் வசனங்கள் நம் வாயிலே வெளிப்படும். वो परमेश्वर का वचन हमारा जीभ से वो निकलेगा। தேவ ஆவியானவரால் நிறைந்து நாம் வசனங்களை பேச வேண்டும். परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर होकर इस वचन को हम बातें करना है। பாவப்பட்ட மக்களை பார்த்து பேசும்போது जब हम पापी लोगों को देख के बातें कर रहे तो அவர்கள் மனம் திரும்புவார்கள். उनका मन फिर हट होगा। நோயாளிகளை பார்த்து பேசும்போது उनका जो दुख से हम बातें करें तो பிரியமானவர்களே, நோய் உள்ளவர்களை பார்த்து நீங்கள் ஆவியினால் நிறைந்த வசனம் பேசும்போது पवित्र आत्मा से भरा होकर जो पीढ़ी में है उनसे आप बात करने के समय में நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் சுகமாக்கப்படுவார்கள். वो चंगाई पाते हैं। பிரியமானவர்களே, मेरे प्रिय भाई और बहनों, அநேக வேதனைக்குள்ளாய் இருக்கிறவர்களை பார்த்து பேசும்போது जब दुख लोगों को सामने हम खड़े होकर उनसे बातें करने से அவர்களுக்கு சமாதானமும் சந்தோஷம் உண்டாகத்தக்கதாய் கர்த்தர் பேசுவார். उनका जीवन में सुख और समाधान पाने के लिए परमेश्वर आपके द्वारा बातें करेगा। நீங்கள் இந்த சூழ்நிலைகளை அறிந்து ऐसे परिस्थितियों को जानकर காலியான பாத்திரத்திலே நீங்கள் அவர்களுக்கு தர்மம் செய்ய வேண்டும். आमीन। आपका हाथों से दूसरों को धर्म करना है। நிறைய இருக்கிறவனிடத்திலே நீ தர்மம் செய்ய வேண்டாம். जो लोग पहले से आशीष से भरे हुए उनको मदद करने से कुछ नहीं होता है। யாருக்கு தேவையோ அவர்களுக்கு நீ தர்மம் செய்ய जिस வேண்டும். लोग जरूरतों के लिए वो ऐसे रहते हैं उनको हम मदद करना उचित है। யாருக்கு சுகம் வேண்டுமோ அவர்களுக்கு சுகம் தர வேண்டிய தேவ வார்த்தைகளை பேச வேண்டும். जो लोग मन में दुख है उनको जाकर हम परमेश्वर का वाचा को बताना उचित है। கர்த்தருடைய வார்த்தை அவர்களை சுகமாக்கும். जब जो मुंह से निकले हुआ परमेश्वर का शब्द उन्हें सुख देगा। கர்த்தருடைய வார்த்தை வெறுமையாய் போய் வெறுமையாய் திரும்பாது. परमेश्वर का जो शब्द है ऐसे जाकर वापस नहीं आता है। பிரியமானவர்களே, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார். परमेश्वर पिता आपसे प्यार करता है। கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நேசிக்கிறார். जितने भी लोग इस टीवी को देखते हैं और सुनते हैं, परमेश्वर आप लोगों को आशीष करता है। உங்கள் நாவை காத்துக்கொள்ளுங்கள். देख लीजिए हमारा जीव को हम सुरक्षित रखना है। தேவன் சொல்லுகிற அறிவுரை என்ன? देव जो परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, கோபப்பட்டு வருகிற வார்த்தைகளை அடக்கி விட வேண்டும். क्रोध से जो आते शब्दों है उसको हम थामना है। பாவத்துக்குரிய வார்த்தைகளை அடக்கி விட வேண்டும். पाप के उसका आगे से आता जो शब्दों को हम संभालना है। சீரழிக்கும் வார்த்தைகளை அடக்கி விட வேண்டும். दूसरों को नाश करने वाला शब्दों को हम थामना है। பிறருடைய காரியங்களை அவமாக்கும் வார்த்தைகளை நாம் அடக்கி விட வேண்டும். दूसरों को भटकाने वाला जो शब्दों को हम ना बातें करना है। ஆண்டவர் நமக்கு கல்விமானின் நாவை கொடுக்கிறார். एक ज्ञानवान का जो जीव को परमेश्वर हमने दिया है। ஏசாயா 54 பாருங்கள். ऐसाया किताब में 50 और 4वां वचन ऐसे लिखा है। என்ன சொல்லுகிறது? क्या लिखा है? கல்விமானின் நாவை தந்தருளினார். हमें
जो ज्ञानवान का जो बुद्धि परमेश्वर मुझे दिया करके लिखा है। ஏற்ற வேளையில் சொல்லப்படுகிற வார்த்தைகள் கொடுக்கப்படும். उचित समय में जो बताने वाला शब्दों में आशीष होता है। இது எப்படி வரும்? ये कैसे हम இது எப்படி நடக்கும்? ये कैसे होगा करके हम सोच सकते हैं। அதற்குத்தான் ஆவியானவர் உதவி செய்கிறார். आमीन। इसीलिए परमेश्वर का मदद बहुत बहुत जरूरत है। 2 சாமுவேல் 23:2 அப்படி சொல்லுகிறது. दूसरा सामुएल 23 का दूसरा वचन ऐसे लिखा है, ஆவியானவரின் வசனம் நம் நாவில் வெளிப்படும். आमीन। परमेश्वर पवित्र आत्मा का वचन हमारा जीभ से निकल पाना है। தேவனுடைய நாவு உன்னை ஆசீர்வதிக்கும். परमेश्वर का जो जीभ हमें सदा आशीष करता है। தேவனுடைய ஆவியானவர் உன் நாவில் இருந்து மற்றவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். पवित्र आत्मा आपका जीभ और अंदर रहकर शब्दों के द्वारा दूसरों को आशीष करता है। சாதாரணமாய் உன்னிடத்தில் பேசுகிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க. आमीन। जो साधारण रूप से हम जिस लोगों से बातें कर रहे हैं वो लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे। ஒரு பேய் பிடித்தவன் உன்னிடத்தில் பேசினால் அவன் மேல் உள்ள சாபம் நீக்கப்பட்டு போய்விடும். देख लीजिए, शैतान से भरा हुआ लोगों को बीच में आपका जो शब्द है उन्हें टुकड़ा टुकड़ा करके वो शैतान को निकल जाता है। எப்படி இது நடக்கும்? ये कैसे होता है? எப்படி இது ஆகும்? ये कैसे हो पाएगा करके हम सोच सकते हैं। விசுவாசிக்கிறவர்களால் எல்லாம் கூடும். बाइबल कहती है जो लोग परमेश्वर प्रभु को विश्वास करते हैं उनके द्वारा ये आश्चर्य काम होता है। ஆவியானவரால் எல்லாம் கூடும். हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब कुछ हो सकता है। தேவ ஆவியானவர் தான் அப்படி செய்வார். ऐसे ही परमेश्वर पवित्र आत्मा हम हमारा पास में रहकर करता है। நம்மால் ஒன்றுமல்ல. ये हम हमारा हाथों से कुछ नहीं होगा। மகா பெரிய தேவன் ஆவியா இருக்கிறார். जो ऊंचा स्थान में रहने वाला परमेश्वर वो आत्मा के रूप से मंडल रहा है। அந்த ஆவியானவர் அப்படி ஒரு அதிசயத்தை वो செய்வார். ऐसा पवित्र आत्मा एक आश्चर्य अद्भुत काम करता है। ஞானமுள்ள நாவாய் உன் நாவை हमारा மாற்றுகிறார். जो जीभ है वो ज्ञानवान होकर रहना उचित है। அநேகரை சுகமாக்கும். वो अनेक लोगों को चंगा देगा, அநேகருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும். अनेक लोगों को खुशी देगा, அநேகருக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும். अनेक लोगों को आपका जीव का जो बातें है वो आशीष लाएगा। கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே உனக்கு சுகம் வருகிறது. आमीन। जो लोग इस वचन को सुन रहे आप चंगाई पा रहे இதை हो। கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே உன்னுடைய சாபம் பாவம் நீக்கப்படுகிறது. ये जो लोग ये वचन को सुन रहे हैं आपका पाप और शाप अब से मिट जा रहा है। உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கிறது. अभी आपको अद्भुत करते रह रहा है परमेश्वर। ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். यीशु मसीह आपको आशीष करेगा। ஜெபிப்போம். हम प्रार्थना करें। சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனே, सर्वशक्तिमान हमारा இந்த परमेश्वर, வசனத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे उन सबों के ऊपर आशीष हो जाए। அவர்கள் நாவு ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். उनका जो जीव है वो आशीष पाएंगे। ஆசீர்வதிக்கும் நாவாய் அவர்களை நாவை மாற்றும். जो जो दूसरों से बात करने के समय उनका जीव आशीष से भरे हुए जीव बन जाते हैं। நீதிமானின் நாவாய் மாற்றும். और नीतिमान का और जो जीव बन जाते हैं। நீதிமானின் நாவு ஆசீர்வாதத்தை தரும். हमें नीतिमान का जो जीव है वो आशीष को लाएगा। இந்த பிரசங்கம் எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதத்தை தரட்டும். ये जो प्रचार सभी लोगों को आशीष लाए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह का नाम से हम इस विनती को चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। ஆமென். आमीन। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். आमीन। நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன். நீ ஆசீர்வாதமாயிருப்பாய்.